Hello and welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because Joshi inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because Joshi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth. Together, ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। This is an effort so as to improve on your self confidence, on your self development. So, friends, before we begin with today's topic, I appeal to all of you that if you love this series, please like, share, and subscribe as it motivates me to create more such content. So, today's topic is, friends, never give up. शुरुआत एक शायरी से करते हैं। ठोकरें खाकर भी संभलता रहा, अंधेरों में भी जलता रहा। ठोकरें खाकर भी संभलता रहा, अंधेरों में भी जलता रहा। छूटे नहीं कभी हौसले मेरे, छूटे नहीं कभी हौसले मेरे, गिरते हुए भी चलता रहा। मंजिल ने एक दिन खुद आवाज दी, मंजिल ने एक दिन खुद आवाज दी, तू ठहरा नहीं इसीलिए तू जीत गया। सो फ्रेंड्स, नेवर गिव अप बिकॉज you never know in what way the opportunity will knock you. So the meaning of never give up means it's more than just a motivational line. ये ऐसे नहीं है कुछ हमेशा चलते ही रहना चाहिए. No, it is not only that line. ये एक force है. It is a mindset. It is a powerful mindset, a way of life. It means that to persist, to continue striving towards your goal, even when the odds are against you. देखो, life is posing challenges to everybody. आप अकेले नहीं हो, ये अपने ध्यान में बिल्कुल रखना। हमेशा हम बात करते हैं, कोई भी जरा सा प्रॉब्लम के आगे हम बोलते हैं, देखो मेरे साथ ये ऐसा हुआ, भगवान मेरी तरफ देखता ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। Everyone is facing the world. That is the way life is teaching you. नहीं तो कैसे सीखोगे? मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जीने का मजा ही चला जाएगा। एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, बट नथिंग टू वर्क ऑन। द ब्रेन इज आइडल बिकॉज एवरीथिंग इज स्मूथ. सो द लाइफ टीचेस यू थ्रू द चैलेंजेस एंड हेंस यू हैव टू नेवर गिव अप. इट मीन्स that refusing to surrender to failure, fear, or fatigue. You see, these three F's, the failure, fear, and fatigue, they are draining you out. They are taking you to a stagnancy. इसीलिए never give up. Everyone faces the obstacle, setbacks, and disappointments in life. But what separates the achiever from the rest is the one trait that they don't quit. सक्सेसफुल वही होगा जो क्विट नहीं करेगा. क्या मजा अगर आधा रास्ता चल दिए फिर छोड़ दिया, तो चले क्यों पहला आधा? You have wasted your energy, efforts and everything on the wrong direction. So एक बार चल पड़े अपने गोल की तरफ, तो भले कितने भी रुकावटें आए, हमें उन पे मात करके चलना ही है. So it's about showing up again and again, persistence, resilient capabilities. They have to enhance this. and ये ऐसे ही एनहांस होगा. अगर ये आते ही नहीं तो आप अपनी एनहांसमेंट, अपनी रेजिलिएंट कैपेबिलिटी कैसे एनहांस करते? नहीं हो सकता था. चैलेंजेस आए इसीलिए तो आपने सब किया. सो व्हेन यू आर टायर्ड, इवन व्हेन यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, इवन व्हेन योर प्रोग्रेस सीम्स टू बी वेरी स्लो, है ना, जब थके हारे आते हो तो ये सब ऐसा होता है, अरे अभी क्या करना है, अभी ये भी करना है, वो भी करना है. करना तो पड़ेगा क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है, एक गोल अचीव करना तय किया है, इसीलिए करना है. सो यू कैन नॉट अफोर्ड, आई एम रिपीटिंग, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्टैग्नेंट, टू बी लैगार्ड. नो, once you have decided for your goals, you have to move consistently towards your goals, irrespective of the challenges. Challenges आएंगे तो आप सोचना शुरू करेंगे कि अरे इसके ऊपर मात कैसे करूं मैं. That is the way you are developing yourself. So the real content of persistence is that when we dig deeper into what it truly means to not give up, we discover that it's not about being blind,
टू रियलिटी। देखो, अच्छा मैं ये सब कुछ छोड़ो, मैं देखूंगा नहीं रियलिटी क्या है, नहीं नहीं, चैलेंजेस आए, दे आर पोजिंग सम चैलेंजेस, दे आर शोइंग यू द रियलिटी मिरर। तो प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, बट यू हैव टू बी वेरी फर्म टू कोप अप विद देम, टू ओवरकम देम, to reach your goals. So you cannot afford to be, again I'm repeating the word afford, you cannot afford to be blind towards reality. ना मैं ये देखूंगा नहीं, मुझे अभी इतना ही करना, ये भी नहीं चलेगा, because responsibilities as you grow in your life with age and with position also, the responsibilities they are coming more and more. तो आप ये नहीं कह सकते नहीं इतना नहीं करूंगा, इतना ही करूंगा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? Because many of the responsibilities you are not choosing them, you have to bear with them. So it's not stubbornness, नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं है, आपको सबके साथ लेके चलना है, so that they also become a force for you to lead further. So instead, it's a conscious choice to remain committed to your purpose. Instead of becoming stubborn, why not become conscious towards remaining stubborn? Instead of remaining stubborn, why not become conscious towards your committed purpose? Purpose क्या है? गोल अचीव करना है। डिसाइड किसने किया? आपने। किसका गोल है? आपका। किसका फायदा होने वाला है? आपका। So if you are decided about your future, why are you stubborn or ignoring the reality? It is teaching you something more. So you should not be stubborn. You may have to change your approach. ये हो सकता है. You may have to change your methods. ये हो सकता है. Revise your plans, not give up the plans. तो गोल्स अगर ठीक है, इतना बड़ा गोल है, ब्रेकअप कर दीजिए, थोड़ा छोटा अभी कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए, रियलिटी कुछ अलग आ गई, प्रॉब्लम्स कुछ अलग आ गए, आपका समय ज्यादा उधर जा रहा है, एग्रीड। Don't give up on the plans or goals. Revise them. Break them into small parts. So take the detours, because you cannot afford, or should not abandon your dreams. सपने देखे हैं खुद के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो अबेंडन कैसे कर सकते हो? थर्ड टाइम आई यूजिंग द वर्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू अबेंडन योर ड्रीम्स। अरे सपने देखे अपनी खुद की जिंदगी के, तो पूरे कब करोगे? करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं ही, बिकॉज लाइफ इज पोजिंग चैलेंजेस टू एवरीबडी, यू आर नॉट एन एक्सेप्शन। सो एवरी स्टोरी ऑफ सक्सेस, वेदर इट्स इन बिजनेस, अपने खेल कूद वाले में भी चैलेंजेस होते हैं, स्पोर्ट्स, साइंस, लाइफ, एनीथिंग you name it, there is a challenge. So the person who keeps going when it would have been easier to stop. कई बार हमें ऐसा लगता है, बाबा छोड़ दो, इतना नहीं होगा मेरे से, ये कौन करेगा इतना? अगर ये सवाल अपने आप के लिए क्रिएट हो रहा है, ये कौन करेगा इतना, है ना? हमारे घर की बातें जो हमें लगता है कि है इतना कौन करने वाला है, और इतना कौन करने वाला है, तो तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे गोल्स है, तुम्हारे सपने हैं, तो किसने करना चाहिए? तुमने ही करना चाहिए। और अगर यही सवाल अपने आप को पूछ रहे हो, इतना कौन करेगा, तो यू आर डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज। डोंट डू दैट, बिकॉज कैपेबिलिटीज आर अनएक्सप्लोर्ड टिल दे आर यूज्ड। देखो, प्रॉब्लम आएंगे तब आपको समझ में आएगा आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप कितना आगे जा सकते हो। प्रॉब्लम्स में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब सक्सेसफुल इवॉल्व हो जाओगे, तब तो सबको कहानियां सुनाते फिरोगे, है ना? मैंने ऐसा किया था, तब मैं ऐसा था, इतने प्रॉब्लम थे, लेकिन मैंने करके दिखाया। और मान लो थोड़ा सा पीछे जाके यही सोचो, अगर उस वक्त मैंने छोड़ दिया होता तो ओह, तो आज मैं ये कहानी नहीं किसी को सुनाता होता, ना ही मुझे इतनी खुशी होती कि अरे मैं इतना सब कुछ पार करके इस मुकाम पे आ गया, है ना? सो द कंटेंट ऑफ परसिस्टेंस इज मेड ऑफ स्मॉल डेली एक्शंस टेकन इवन व्हेन मोटिवेशन फेड्स। कई बार ऐसे होता है, करके देखो ना, तुमने क्या प्रॉब्लम है, अरे करो थोड़ा सा करो,
कभी एल्डर लोग मांगे पीछे लग जाते हैं, कभी हमारे पियर्स पीछे लग जाते हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट अंदर से आवाज नहीं आ रही थी, फिर भी आपने चालू रखा, नहीं अभी ताकत थोड़ी और लगानी पड़ेगी, ओके। वो जो इमोशनल पार्ट था, जहां हम छोड़ने ही वाले थे, आपने उस पर मात कर ली, अब सक्सेस के रनवे पे आ गए आप। सो द इफेक्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इज दैट नेवर गिविंग अप लीड्स टू कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर छोड़ देते तो क्या हो जाता, इमोशन में आके नहीं अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे टाइम में आपको सिर्फ 1 मिनट रुकना है, यू हैव टू वेट, कीप एवरीथिंग अवे। आप अपने आप को सिक्लूड कर लो, अकेले किसी रूम में अपने आप को बंद कर लेना, फिर सोचना अगर ये मुझे छोड़ना ही था तो मैंने चालू क्यों किया। नाउ यू विल रियलाइज दैट दैट वाज योर ड्रीम। नाउ यू विल रियलाइज दैट अरे ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये पूरा करना पड़ेगा क्योंकि यही तो सपना है मेरा। इट विल रीबूस्ट यू। तो क्या हो रहा है, इट इज इंप्रूविंग यू। क्या बदल रहा है, सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है आपकी। सो यू आर इंप्रूविंग ऑन योर सेल्फ। So every time you persist through a challenge, you grow stronger, wiser, and more capable. अनुभव सिखा रहा है, अब एक्सपीरियंस आ गया। कहते हैं ना कि बहुत शाना है, अरे शाना नहीं, मैं बन गया शाना क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस आ गए। सो आई एम बिकमिंग वाइजर एंड मोर केपेबल। फेलियर बिकम्स अ फीडबैक। अच्छा वो हुआ था, वो ठीक है, उस पर मैंने बात कर ली। रिजेक्शन बिकम रीडायरेक्शंस। इस तरह से जाने के बाद मुझे ब्लॉक आ गया, ओके, तो मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना है, ओके कर दिया। नाउ आई एम मूविंग फास्टर टुवर्ड्स माय गोल्स। सो द रिजेक्शंस which were the cause for moving toward taking you towards stagnation are now become redirections because you redirected your path। पाथ सिर्फ चेंज किया है, छोड़ा नहीं है, सपने पूरे करने ही है। So when you don't quit, you are forced to find new ways, है ना, sharpen your skills and discover inner strengths you didn't even know you had। जब तक प्रॉब्लम आए नहीं थे तब तक आपके अनएक्सप्लोर्ड स्किल्स वैसे ही थे। अब जब प्रॉब्लम आ गए तब आपको पता चला अरे इतने सारे स्किल्स मेरे में हैं, मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों सोचोगे, प्रॉब्लम थे ही नहीं, अब प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्यूशन निकला। क्यों निकला सॉल्यूशन, क्योंकि डेडिकेटेड थे, मुझे अपना सपना पूरा करना है, मैंने कुछ गोल सेट किए हैं। नाउ यू आर सेट इट अप योरसेल्फ एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो यू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड, you become more focused towards your goals, so also you become more patient। ठीक है, इतना प्रॉब्लम है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंज करते हैं पाथ, गोल्स थोड़ा शॉर्टर कर देते हैं एंड वी अचीव देम। यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर सेल्फ डेवलपमेंट, increase in your patience, so you become someone who trusts the journey even when the destination is not visible। That's true self development, है ना। क्योंकि आपने सोचा अरे कहाँ अभी तक तो लंबा जाना है, कहाँ दिखाई नहीं दे, मंजिल तो दिखाई नहीं दे रही है, होगा कि नहीं पता नहीं है, बट कोशिश मैंने छोड़नी नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट एंड दैट इज व्हाट दिस टोटल सीरीज इज अबाउट। सो every time you choose not to quit, you make a statement to yourself, I believe in me। That repeated belief over a period of time becomes self confidence। अब जब इतने प्रॉब्लम आए तो आपने अपने अनएक्सप्लोर्ड स्किल्स को एक्सप्लोर कर लिया, तब समझ में आ गया बहुत सारे स्किल्स है मुझ में, तो अब डेवलप होने लगे आप खुद, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला गया, बिकॉज you have decided not to quit। You begin to realize that you can handle more than you thought। सोचा ही नहीं था ये मैं कर सकता हूं, लेकिन हो गया। अब जब आगे चल के थोड़ा पीछे मुड़ के देखोगे, then you will be happy to share your stories because those are the success stories of confidence and self development।
आपको भी मजा आएगा सुनाते समय, अरे तुम्हारा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने क्या फेस किया था. यू सी these dialogues you hear in your daily life also, from your seniors, from your elders in your home. So they are happy to share their success stories. So will you be? Because you will rise. You stop fearing failure because you know it's not the end. It's just a step that is redirecting you to go towards your goals. This resilient capacity comes from your forceful acts, and now it has become your identity. अब किसी को भी पूछो तो बोलेगा अरे ये कर सकता है, इसमें वो कैपेबिलिटी है. किसने बोला? आप ही ने बोला. कब बोला? नहीं, आपने एक्शन से बोला. सब देख रहे थे कि प्रॉब्लम आने के बाद आप क्या कर रहे हो. आपने प्रॉब्लम से मात करके सक्सेस अचीव कर लिया. So now that becomes your identity. So every time when similar problems come to anyone, they will refer it to you. That's what your identity is. What has gained it? You have created your identity with enhanced confidence, self-confidence, and hence the self-development. So your emotions will not control you anymore. Confidence is not the absence of fear. It's the decision to move forward despite it. डर तो रहेगा ही. मैंने कहा अरे मुझे मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चलना तो पड़ेगा क्योंकि मंजिल तो मैंने तय किया है कि वहां तक पहुंचना है. लेकिन ऐसे प्रॉब्लम से इतने आगे कि मुझे लगा अभी मुझे ये एफर्ट्स छोड़ने पड़ेंगे. नो. सो कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट फियर. It's about to move forward despite that fear. And nothing builds this kind of unshakable confidence better than refusing to give up. कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप खुद अपने आप से कहोगे नहीं नहीं मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम गोइंग टू बाउंस बैक फोर्सफुली, डबल द फोर्स. So the words never give up hold the essence of great journey. Whether your goal is personal, professional, or spiritual, the path will never be smooth, but the journey will always be worth it if you stay on the course. Obstacles are not meant to stop you, they are meant to shape you. That is what you should understand. अपने मन को ये समझा देना. हम थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के बाद ही रोने लग जाते हैं, या मेरे साथ ये ऐसा हो. नो नो नो, you stop crying. Stop blaming every other person. Rather than you take this obstacle as the one which is shaping you. Let the challenge be a chapter in your story, not the end of it. अरे हाँ ये चैलेंज आ गया इसलिए मैंने छोड़ दिया. अरे ये आधी अधूरी कहानी नहीं बतानी है, पूरी कहानी. प्रॉब्लम आए लेकिन उस पर मैंने मात की. I never give up. So the sun always returns. That is the fact. रोज तो सन आता है, अब अकेला ही चलता है. बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, सूर्य है. So sun always returns. So when you feel like giving up, pause, breathe, and remind yourself why you started first. Because the moment you refuse to quit is the moment you begin to win. So हमेशा जब भी प्रॉब्लम में आओगे तब एक बार सिर्फ अपने आप को पूछ लेना कि मैंने शुरुआत क्यों की थी. साथ में एक बार सूर्य देव को देख लेना. कुछ भी हो जाए, he has not missed a single day. He is there. रेनी सीजन हो, डार्कर सीजन हो, गर्मियां हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, he is there. इसलिए मैंने कहा ठोकरें खाकर भी संभलता रहा, अंधेरों में भी जलता रहा, छूटे नहीं कभी हौसले मेरे, गिरते हुए भी चलता रहा. कि मंजिल ने एक दिन खुद आवाज दी, तू ठहरा नहीं इसीलिए तू जीत गया. So I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because she inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.